Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I'll be reviewing a makeup brush set. At this point of time, I've honestly lost the count of how many brush sets I have officially reviewed on my channel, and I think I should rename my channel to Gauri Styles the Brush Set Reviewer if that makes any sense. Because today I'll be reviewing Pack Beginner Basic Face and Eye Brush Kit, which consists of 7 brushes where you have got 3 brushes for your face, 3 for your eyes and 1 for your eyebrow. And I'm super excited to try and review this brush set for you all. If you're also excited like I am, then without wasting any further ado, let's keep on watching. Guys, it's just early March and I'm sweating like crazy. Like इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है that I feel like switching on my air conditioner, but it's not serviced yet. बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्या ही हो गया है. But we got to do what we got to do. तो पसीना पोंछ के खुशी मन से रिव्यू स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट I'll be pinning my hairs because I'm feeling extremely hot and नहीं भी गर्मी लग रही होती तब भी anyways मैं अपने hairs pin कर ही लेती हूँ. Okay, now I have pinned my hairs. Guys, I've already cleansed, toned and moisturized my face. तो मैं जल्दी से illuminator लगाने के साथ ही start करूंगी आज का makeup tutorial. For illuminator, I'll be using my trusty e.l.f. का Hello Glow makeup filter and I'm in the shade number 1 Fair. ठीक है? I'll be applying it all over my face. इतनी ज़्यादा गर्मी है कि I feel pointless to apply any kind of illuminator just because I'll be sweating like crazy and sweat से जो illumination आती है ना face में वो और भी ज़्यादा glowy लगता है. I know it feels tacky and ऐसे सोच के लगता है कितना tacky लग रहा होगा and मुझे भी face पे sweat बिल्कुल नहीं पसंद है with or without makeup. But guys, it's a fact कि जो sweat से आपके face पे glow आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है and कोई भी high end product उस glow को match नहीं कर सकता है. Okay, the product is nicely absorbed on my face. Guys, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ which is your favorite season. मेरा विंटर है, I'm a winter baby. मुझे हर चीज़ ही विंटर में पसंद है and I'm very very grateful to God कि मेरी शादी भी विंटर में हुई है and मैं पैदा भी विंटर में हुई हूँ and in fact मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे विंटर में ही आता है. तो मुझे विंटर्स की बहुत ज़्यादा पसंद है. I just love winters because I don't like this चिप फीलिंग एंड पूरे टाइम जब मेकअप करके पिघल जाता है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना टास्क हो जाता है. वो सब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. स्पेशली आई हैव अ कॉम्बिनेशन टी जोन, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. बट नाउ आई हैव डिस्कवर्ड मेकअप टेक्निक्स विच वर्क्स ऑन माय कॉम्बिनेशन स्किन टाइप एंड उससे मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है. इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई मेकअप टेक्निक्स फॉर दिस समर सीजन देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. आई पोस्ट अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल. एंड रिसेंटली मैंने समर एसेंशियल्स का यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो क्योंकि समर्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर या आप बोल सकते हो आ ही गई है. So you should stock up on your summer favorites. Okay guys, let's begin with color correction. For that I'll be using PAC color corrector and this one is in the shade Rusty Orange. इसको ही लगा लूँगी on my under eyes and you can see I'm sweating like how. Okay guys, इसमें ना total आप देख लो आपको 7 brushes मिलते हैं. 4 are for your face and 2 for your eyes. क्योंकि आई थॉट दिस वन इज ऑल्सो अ ब्लेंडिंग ब्रश बट मैंने ढंग से नहीं देखा था. इट्स अ कंसीलर ब्रश. हियर इट्स रिटन कंसीलर ब्रश. आप ब्रशेस देख लो इस टाइप के एक पैकेजिंग में आते हैं. दिस इज द आउटर केस एंड दिस इज द इनर केस. इस टाइप में हर ब्रश ऐसे अपनी अपनी जगह में लग के आता है. आई ब्रशेस की बहुत ज़्यादा कंजूसी करी गई है. अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा बट आई कैन ईजिली टेल. एंड दिस वन इज योर कंसीलर ब्रश. तो ये स्पॉट कंसीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा या टू ब्लेंड योर कलर करेक्टर्स एंड एवरीथिंग. एंड इससे ही मैं ओके I thought कि बहुत ज़्यादा gentle होगा on my face, but it's not so gentle. Here I'm using a concealer brush, and this is my first time I'll be trying and reviewing this brush set. अच्छा है, blend अच्छे से कर रहा है. It's good for your spot concealing or to blend in your color correctors or little quantity of concealers. अगर आप full flesh like सिर्फ concealer से अपना makeup करोगे and आप चाहोगे कि full face of concealer आप सिर्फ इसी वाले brush से blend कर लो, that then it won't be possible because ये थोड़ी concentrated blending ही कर पाएगा. It's not good for your complete blending. एंड इसके ब्रिसल्स मुझे थोड़े हार्ड एंड पोकी लग रहे हैं ऑन माई फेस. ये सॉफ्ट फील नहीं हो रहा है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव ट्राइड टन्स एंड टन्स ऑफ मेकअप ब्रशेस ऑन माई फेस एंड आई कैन ईजिली टेल इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. इट्स वेरी पोकी ऑन माई फेस. आप देख सकते हो इसकी एक स्लैंटिंग शेप जाती है इन कॉर्नर्स में, तो ये अच्छे से फिट हो जाता है. अच्छी जगह से हर जगह से ये फिट होकर ब्लेंडिंग कर देगा बट इट्स क्वाइट पोकी ऑन द फेस. Okay, it's time to camouflage this color corrector. For that I'll be using my Corrector Cosmetic Blockout Concealer in the number 004 and ये वाला concealer बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. Now तो these concealers are going viral on Instagram but आप मेरे YouTube शॉर्ट चेक करो. मैंने तो इनकी रील आई थिंक 2 साल पहले ही डाल दी थी. मुझे उस टाइम पे ये कंसीलर इतने पसंद में आ गए थे. ये कंसीलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड हाई कवरेज अफोर्डेबल कंसीलर्स फॉर योरसेल्फ देन काइंडली इन्वेस्ट इन दिस कंसीलर. दिस इज रियली रियली अ वेरी गुड कंसीलर and you can use it on yourself as well as on your clients because these are worth investing. अब क्या करेंगे, सेम ही ब्रश से as it says concealer brush, सेम ही ब्रश को मैं टिश्यू में पहले क्लीन कर दूंगी ऐसे. बस कपल ऑफ टाइम्स मैं स्वाइप करूंगी एंड इससे सारा ऑरेंज करेक्टर हटा लूंगी. मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है. इट्स जस्ट अ क्लीन टिश्यू.
बस इससे क्या होता है, सारा एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाता है, ताकि जब आप कोई कंसीलर लगाओ तो उसके साथ आपकी ऑरेंज की ब्लेंडिंग ना हो। एंड सेम इससे ही मैं डैब डैब करके ब्लेंड करूँगी। ओके, इससे ब्लेंडिंग तो अच्छी तरीके से हो रही है कंसीलर की। आई थॉट कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंसीलर को ब्लेंड नहीं कर पाएगा, बट ब्लेंडिंग अच्छी हो रही है। आई एम स्वेटिंग एंड हाउ। दूसरी साइड भी ब्लेंडिंग कर दूंगी। ओके, काफ़ी अच्छे से इसने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर दिया। आई थॉट कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंसीलर नहीं ब्लेंड कर पाएगा, बट काफ़ी अच्छे से इसने ब्लेंड कर दिया है, प्रोडक्ट को स्प्रेड भी कर दिया है एंड एट द सेम टाइम ब्लेंड भी कर दिया है। इट्स जस्ट दैट इट्स बिट पोकी ऑन द स्किन। अदर देन दैट इट्स अ गुड कंसीलर ब्रश। बस अगर आपको लाइक ये हर्ट नहीं होगा इफ़ यू डोंट हैव सेंसिटिव स्किन, जैसे किसी लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है एंड इफ अ ब्रश फील्स पोकी तो उनकी आइज काफ़ी वाटरी हो जाती है। अगर आपका वो केस है देन स्टे अवे फ्रॉम दिस कंसीलर ब्रश। बट अगर ऐसा नहीं है, इफ यू कैन बेयर मिनिमम पेन देन इट्स ऑल राइट, क्योंकि थोड़ा सा पोकी है बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Okay, this is the result with this concealer brush. It's time for the foundation, and for foundation I have this slanting brush which reminds me of a Rare Beauty foundation brush. Rare Beauty का भी ना बिल्कुल similar foundation brush है, and this is foundation brush. ये भी एक angular shape में आता है जिससे आप बहुत अच्छे से अपने foundation blend कर सकते हो. But guys, मैंने एक reel देखी थी Instagram में जिसमें creator ने ये powder brush को compare किया था Huda Beauty के face blending brush के साथ जो बहुत expensive है. But she said that this brush is a perfect dupe of Huda Beauty का brush. उसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी. तो आज मैं अपना फाउंडेशन इसी वाले ब्रश से ब्लेंड करके देखूंगी कि ये कैसा परफॉर्म करता है. इस वाले ब्रश सेट में ये वाला ब्रश फाउंडेशन के लिए है एंड दिस वन इज फॉर द पाउडर. बट आई विल बी ब्लेंडिंग माय फाउंडेशन विद दिस ब्रश बिकॉज द क्रिएटर कंपेयर्ड इट विद द हुडा ब्यूटी का ब्लेंडिंग ब्रश. Okay, on this side of my face I'm dotting the foundation all over. सेक्शंस में वर्क करेंगे एंड देखेंगे कि हाउ दिस फाउंडेशन ब्रश वुड परफॉर्म, और टेक्निकली पाउडर ब्रश विल परफॉर्म एज अ फाउंडेशन ब्रश ऑन माय फेस. Okay, it's very densely packed, so it's blending the foundation beautifully. गाइस ये बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कर रहा है. इट्स सुपर सॉफ्ट ऑन द फेस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है अनलाइक द कंसीलर ब्रश काफ़ी हार्ड लग रहा था बट इट्स सुपर सॉफ्ट ऑन माय फेस एंड इतने प्यारे तरीके से फाउंडेशन ब्लेंड कर रहा है, मज़ा ही आ गया. बहुत ही अच्छा, एक भी ब्रश स्ट्रोक का मार्क नहीं है, कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट ये पिक नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि फाउंडेशन अब्सॉर्ब कर रहा है. एंड बहुत ही प्यारी ब्लेंडिंग हुई है. आई एम इन लव विद दिस फाउंडेशन ब्रश, हाईली इम्प्रेस्ड विद इट्स क्वालिटी. And I've made a very right choice by investing in this particular brush set just for this brush. I was very skeptical कि मैं पूरा brush set ले तो रही हूँ just for this brush, ये worth it होगा भी या नहीं होगा. It's just that कि I already have a lot of makeup brushes and I didn't want any other makeup brush to add in my collection, but I think I have made a right choice क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा foundation brush है and I think this is gonna be my new favorite foundation brush as well. यार आप लोग भी अपने मेकअप ब्रशेस के साथ मल्टीटास्किंग करा करो, क्योंकि एक ब्रश को एक यूज के लिए लिमिटेड मत रखा करो. इससे आप अपनी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कर सकते हो, कंसीलर की कर सकते हो, कॉन्टोर की कर सकते हो, ब्लश की कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो. Okay guys, I'm very impressed with this powder brush as a foundation brush, and now it's time for the contour. For that I'll be using Daily Life Forever 52 Flourish Cream Contour, and this one is in the shade 002. And as always I have removed its sponge tip applicator. ये ना वैसे अच्छा contour है, but I'm not super impressed as well because it's very fluidy and it's very difficult to control its intensity. Like एक बार में pour करने में काफ़ी ज़्यादा product आ जाता है, but ठीक product है. It's not wow and not bad as well. It's somewhere in between. एंड मैं कंसीलर ब्रश से ही ये कॉन्टोर ऑल ओवर में फेस लगा लूँगी. आजकल वो गीता गोविंदम का गाना इतना फेमस हो रहा है ना, आई डोंट नो द लिरिक्स, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट मेरे पूरे टाइम में दिमाग में वो चले जा रहे हैं. जैसे ही इंस्टा खोलो वैसे ही विजय देवरकोंडा एंड रश्मिका की वेडिंग की सारी वीडियोस आती हैं एंड द ड्यूओ इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं एंड सारी वीडियो भी उनकी आ रही है. तो दिमाग में वही चल रहा है. आई एम प्लानिंग टू डू अ ट्रांजिशन लाइक मेकअप ट्रांजिशन रील फॉर दैट सॉन्ग एज वेल. तो अगर आप मेरी वीडियो देखो तो एंगेज कर देना. ओके गाइस, ये ना लगाने के लिए ही ठीक था. मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ तो ब्लेंड नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट दैट कि प्रोडक्ट थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, आप देखो, बट ब्लेंडिंग नहीं हो रही है. तो ब्लेंडिंग के लिए मैं सेम पाउडर ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करी थी. एंड यू कैन यूज़ इट इन मल्टीटास्किंग वेज जैसे कि मैं कर रही हूँ. देखो इससे कितनी अच्छी क्रीम कॉन्टोर की ब्लेंडिंग भी हो रही है. ये तो सबसे अच्छा ब्रश है. एंड अगर आपको सिर्फ इस ब्रश के लिए ही ये ब्रश सेट खरीदना है जो कि मैंने किया है तो आप 100% खरीद सकते हो, बिकॉज ये जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रश है एंड इससे आपके काफ़ी सारे काम निपट जाएंगे. लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग एज वेल एंड इफ यू वांट टू कीप अ सिंगल ब्रश देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस ब्रश एज वेल. जैसे होता है ना, ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत लाइट ब्रशेस ही पैक करते हैं ताकि एक ब्रश से 2-3 काम कर ले. तो उस टाइम पे भी ये वाला ब्रश काफ़ी हैंडी रहेगा. इट्स अ वेरी गुड ब्रश. जस्ट लव दिस ब्रश.
हुडा ब्यूटी का एक सिंगल ब्रश भी इतना महंगा है एंड ये पूरा सेट भी उतना महंगा नहीं है। कैन यू इमेजिन कि लाइक ब्रांड्स कितना ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम होगा, मेरे पास वो हैवी नहीं, बट इट्स परफॉर्मिंग रियली रियली वेरी गुड एंड आई एम really impressed in a good way with this particular brush. Okay, it's time for the cream blusher, and for that I'll be using my favorite duo. This one is from Maybelline in the shade Pink Mirage, and this one is L'Oreal Paris Lumi Liquid Blush, and this one is in the shade Glowy Gold Pink. And ये दोनों ही बहुत ही प्यारे ब्लशर्स हैं। These are my absolute favorite. Guys, अब तो आपको हाई एंड ना लिक्विड ब्लशर लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। Maybelline, L'Oreal, Mars, Swiss Beauty, इनके ब्लशर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रीमी, बहुत ब्लेंडेबल। इनमें डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस भी आते हैं, मूव blushes, cream blushes, and your liquid blushes. So you don't have to invest in high-end brushes. Similar काम आपको हो जाता है इन ब्लशेस के साथ भी, and ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। I often reach out to these blushes as compared to my Rare Beauty liquid blush. अब जिससे मैंने contour blending करी थी ना, उससे ही मैं blush की blending करूँगी, but first I'll swipe this on a clean tissue ताकि कोई भी excess product हो वो remove हो जाए, and then I'll blend my cream contour with this particular brush only. Okay, it's blending the product beautifully. And look at the glow with just the blusher. Wow, I just love it. कितना pretty लग रहा है. Okay, it's time to highlight my face. For that, I'll be using Anastasia Beverly Hills Concealer, and this one is in the shade number 7. And इससे मैं बहुत अच्छे से अपना फेस हाईलाइट कर लूँगी. It's a very beautiful liquid concealer, and ये बहुत ना अच्छी सी एक फिनिश देता है आपके फेस में. It's a very luminous concealer as well, and ये बहुत ज़्यादा अच्छा concealer है. I don't know why many people don't talk about this concealer. It's worth all the hype. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा concealer है, बहुत अच्छी finish है. It gives you full coverage, and बहुत ही प्यारा concealer है ये. I so wish to blend my concealer with this powder brush only because it's my new favorite brush. But हम ये वाला foundation brush भी test करेंगे, and मैं ये concealer इसी foundation brush से ही blend करूँगी. Okay, due to its angular shape, will take some time to get a hold of this brush. क्योंकि थोड़ी सी इसकी शेप डिफरेंट है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकड़ने में, इसकी एप्लीकेशन में. इट्स अ गुड ब्रश. हाउएवर आई प्रेफर पाउडर ब्रश ओवर दिस ब्रश टू ब्लेंड माई क्रीम प्रोडक्ट्स क्योंकि उसकी ज़्यादा फील अच्छी है. वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है फेस पे. ये भी सॉफ्ट है बट उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट ये वाला है. एंड इसकी शेप थोड़ी सी मुझे ट्रिकी लग रही है टू ब्लेंड द प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस. बट वो एक बार में आप इसे यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए. तो दीज आर ऑल द न्यूएंसेस which I take care while reviewing any kind of product on my page, and I hope you like this feature of mine. इसकी भी ब्लेंडिंग अच्छी है बट ये उतना ज़्यादा सॉफ्ट फेस पे नहीं है जितना ये पाउडर ब्रश फील होता है. बट सारे ही ब्रशेस की एक बात कमाल की है कि किसी से भी ना कोई भी ब्रश स्ट्रोक का मार्क नहीं दिखता है. दे आर सो एफर्टलेस while blending. By the way, if I forgot to mention, the bristles of all of the makeup brushes are made up of synthetic fibers, which makes them super soft on your face. Okay, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेस मेकअप. सारे ही ब्रशेस बहुत अच्छे हैं एंड अभी तक मैंने ये तीनों ही ब्रशेस यूज़ कर लिए हैं. इट्स टाइम टू पाउडर माई फेस बट फर्स्ट आई विल रिपीट माई हैक जो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, दैट यू जस्ट हैव टू टेक अ Q-tip to remove the excess product from the areas where you crease a lot. It can be under your eyes or above your eyelids. It can be your smile lines, your forehead lines. It can be anywhere on your face from where you crease a lot. Then just go over with your same brush with which you have blended in your highlighting concealer or foundation for that seamless blend. Okay, it's time to powder set my face. For that, I'll be using this brush. It says blusher brush, but the shape is just appropriate. Like you can see, it's tapered in shape and it's just appropriate to powder your under eyes or around your mouth. And you can use it to apply your contour as well as your blusher. तो आज ये तीनों ही चीज़ें हम इसी particular brush से ही लगाएंगे. And to powder my under eyes, I'll be using MAC Studio Fix Compact Powder in the shade NC35. This is the new trick which I have discovered. मैं क्या करती हूँ, जब मैं लूज पाउडर से अपनी अंडर आइज को सेट कर रही थी तो मैं थोड़ी सी एक ग्रे कास्ट देख रही थी. एंड mind you, I'm doing all these steps correct. I'm a professional makeup artist and I know how to cover the under eye dark circles, but still I can see a gray cast under my eyes. तो अब मैं ये वाला ये थोड़ा डार्कर शेड है कॉम्पैक्ट पाउडर, देन मैं स्किन टोन मैं इससे ही अपनी अंडर आइज को सेट कर लेती हूँ एंड देन मैं लूज पाउडर लगाती हूँ. उससे एक सीमलेस फिनिश आती है एंड कोई भी ग्रे कास्ट नहीं दिखती है. आई एम जस्ट गोना टेक this powder on this brush. I'll tap off the excess. I'll go over with the foundation brush once again so as to remove any creases, and then I'll just powder set my face. Literally, it's that simple. इस टाइम पे मैं सिर्फ अपनी अंडर आइज को ही पाउडर करूंगी एंड आई यूज अ लूज पाउडर टू पाउडर माय एंटायर फेस. आई हैव डन द सेम ऑन माय अदर आई एज वेल. अब आप देखो कुछ भी ग्रे कास्ट नहीं दिखेगी.
बहुत ज़्यादा सीमलेस दिखेगा एंड नो कुछ भी केकी भी नहीं लगेगा, कुछ हैवी भी नहीं लगेगा, कुछ मेडअप भी नहीं लगेगा। मैं काफ़ी टाइम से ये ट्रिक ट्राई कर रही हूँ एंड नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि दिस ट्रिक इज गोना वर्क फॉर पीपल हु हैव हेवी डार्क सर्कल्स लाइक मी। आप मैं लूज पाउडर यूज़ करूँगी, कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। टुडे आई विल बी यूजिंग माय फेवरेट विच इज़ लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर एंड मैं इससे ही अपना पूरा फेस सेट कर दूँगी। यू कैन यूज़ द सेम ब्रश और यू कैन यूज़ द पाउडर ब्रश विद विच यू हैव ब्लेंडेड इन योर फाउंडेशन। अंडर आइज को मैं इससे ही सेट करूँगी बहुत अच्छे से। आई पाउडर माई इंटायर अंडर आइज with this brush only. I powder my nose heavily because I sweat a lot from there. And then I'll be using the powder brush to powder my entire face. Okay, it's good for powdering as well. मुझे लगा कि इससे पाउडर इतनी अच्छी तरीके से नहीं लगेगा बिकॉज इट्स वेरी डेंसली पैक्ड, बट बहुत अच्छे से पाउडर भी लग रहा है। इवन लूज पाउडर भी बहुत अच्छे से लग के पैक हो रहा है। तो यू कैन यूज दिस ब्रश इन अ मल्टीटास्किंग वे एंड दिस अ वेरी गुड ब्रश। बहुत अच्छे से आई सेट माई इंटायर फेस। I'm applying excess loose powder only because I'm sweating a lot and I want to make my makeup long lasting. Guys, it's not that कि अगर आप ज़्यादा powder लगाओगे, you'll take away all the glow from your face. You have to bring back the glow with the help of a setting spray and your highlighter. So these are all the tips and tricks, but don't skip on your powder ever because that's gonna ruin your makeup. Okay, it's time for the contour. For that, I'll be using my NYX Cup Professional Highlight and Contour Pro palette. And मैं सेम ही पाउडर ब्रश से लाइक दिस सेज ब्लशर ब्रश, बट इसकी शेप ना बिल्कुल पाउडर ब्रश जैसी लगती है, तो हमेशा इसको देख के पाउडर ब्रश ही निकलता है। डोंट माइंड दैट। मैं बस अपने कॉन्टोर शेड्स लूँगी एंड अपना ऑल ओवर द फेस कॉन्टोर कर लूँगी। ये ब्रश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आफ्टर पाउडर ब्रश आई एम लाइकिंग दिस ब्रश। अगर मैं हायरार्की करूँ ना, अभी तक इन टोटल आई हैव यूज 4 ब्रशेस and in total we have 7 brushes. So this one is my first favorite, this one is second, this one is third and this comes fourth. तो फेस ब्रशेस तो आर डन इन दिस सेट। अब बस इसमें आईब्रो का ब्रश बचा है एंड आईज के ब्रशेस बचे हैं। बहुत अच्छे से मैं ये पाउडर भी लगा दूंगी, लाइक कॉन्टोर कर लूँगी अपने फेस में। इट्स ब्लेंडिंग द कॉन्टोर वेरी वेल ऑन माई फेस। बहुत सॉफ्ट है तो अच्छे से प्रोडक्ट को पिक भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ब्लेंड भी कर रहा है। कहीं भी कोई हार्श लाइन्स भी नहीं बन रही हैं एंड इट्स परफॉर्मिंग द जॉब ब्यूटीफुली। आई जस्ट लव इट। मुझे अच्छे लगता है कि जब एक ब्रश ना 2-3 काम कर देता है हमारे, एंड स्पेशली ऐसे ब्रशेस ना ट्रैवल के टाइम पे काफ़ी यूजफुल रहते हैं। देखो कितने अच्छे से कॉन्टोर हो गया मेरा पूरा फेस। आप नोज कॉन्टोरिंग अपने आई शैडो ब्रश के साथ भी कर सकते हो, बट इसके साथ भी करना है तो वो भी दिखा देती हूँ। इसे बस पिंच कर लो। जस्ट टेक योर कॉन्टोर शेड्स एंड पिंच इट टू मेक इट अ फैन ब्रश एंड देन जस्ट ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग इट विद योर आईब्रोज। Okay, this side is done. Let me do this side as well. Look how pretty. Okay, it's time for the powder blush and for that I'll be using my Benefit Shelly blusher. And it's a very beautiful coral blusher. देखो कितना प्यारा सा ये coral blusher है। And मैं same ये blusher brush से ही लूँगी। I'll dust off the excess and then I'll just tap and apply the blusher. एंड इससे ब्लशर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट मिल रहा है, लाइक जैसे जो बिग ब्लशर ब्रश होते हैं उससे ऑल ओवर योर फेस ब्लश लग जाता है, बट इससे काफ़ी अच्छी प्रिसाइजली एप्लीकेशन हो रही है एंड बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को पिक भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। आई जस्ट लव इट। थोड़ा सा ऑफ कोर्स आई एम गोना पुट ऑन द टिप ऑफ माय नोज एज वेल। इससे बहुत गर्ली गर्ली लुक लगता है। ओके, इट्स टाइम टू पाउडर हाइलाइट माय फेस। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड NC20 एंड इससे ना पूरी एक ब्राइटनेस आ जाती है फेस में ओवरऑल। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जस्ट यूज अ लाइटर शेड ऑफ कॉम्पैक्ट ऑन दी हाइलाइटेड एरियाज ऑफ योर फेस। इट ब्रिंग्स बैक ऑल द डायमेंशन टू योर फेस। बहुत अच्छा लगता है। एंड कुछ भी अगर एक्सेस पाउडर कभी इधर उधर लग जाता है, जैसे ब्लशर अगर आपका काफ़ी ऊपर तक आ गया ऑन योर अंडर आइज या कोई और प्रोडक्ट कॉन्टोर आपका ढंग से लाइक काफ़ी नीचे तक आ गया, तो उससे बहुत अच्छे से आप हर चीज़ की इंटेंसिटी को क्लीन आउट भी कर सकते हो। तो ऑलवेज अप्लाई एंड फिनिश योर मेकअप विद द हेल्प ऑफ अ हाइलाइटिंग कॉम्पैक्ट पाउडर। Okay, it's time to do my brows. For that, I'll be using Anastasia Beverly Hills Brow Powder Duo, and this one is in the shade Dark Brown. Here, I'll be using their eyebrow brush, and on one side you get a spoolie, and on the other side you get an angular brush. Let's see how this brush would perform. एंड अनस्ताजिया का मैं बस ये ब्राउ पे उंगली लूँगी एंड इससे मैं पहले नीचे की तरफ ड्रॉ करूँगी अपनी ब्राउज को, देन ऊपर की तरफ से। ओके, दिस आईब्रो ब्रश इज़ अ गुड आईब्रो ब्रश। ये भी अच्छा है, जैसे सारे ही होते हैं उसी टाइप का है, काफ़ी प्रिसाइज है, तो प्रिसाइजली आप अपने ब्राउज को ड्रॉ भी कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम फिल भी कर सकते हो। इट्स अ गुड आईब्रो ब्रश। अच्छा है ये वाला ब्रश भी।
आप देखो मैं इसकी टिप से थोड़े से स्ट्रोक्स भी आगे की तरफ बना रही हूँ ताकि मेरी ब्राउज बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे। यू कैन कंपेयर द रिजल्ट बाय योरसेल्फ, इट्स अ गुड आईब्रो ब्रश। गाइस अगर आप इंडिविजुअल कोई भी ब्रश लोगे ना, ऑफ कोर्स इट वुड कॉस्ट मच मोर एज कम्पेयर टू अ ब्रश सेट। तो आई ऑलवेज टेल यू गाइस टू इन्वेस्ट इन अ ब्रश सेट रादर देन अ पर्टिकुलर ब्रश। एक सिंगल ब्रश हमेशा महंगा पड़ेगा, एंड अगर आप कोई ब्रश सेट खरीदोगे ना तो वो ऑफ कोर्स काफ़ी रीजनेबल पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अ सिंगल ब्रश। ओके, इट्स अ गुड आईब्रो ब्रश। ओके गाइस, ब्लशर थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं बिकॉज आई फील लाइक फॉर दैट आई विल बी यूजिंग करेक्टर आर्टिस्ट मेकअप पेरिस मैजेस्टिक ब्लश पैलेट, एंड ये बहुत ही अच्छी ब्लश पैलेट है। इसमें आपको टोटल 12 ब्लशेस मिलते हैं एंड ये सारे ही बहुत प्यारे हैं। तो थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं। आई एम टेकिंग दिस एंड दिस, इन तीनों को, इनफैक्ट इन तीनों को लूंगी। आई डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड देन जस्ट ऐड ऑन द साइड्स ऑफ माई चीक्स। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग। अब मुझे अच्छा लग रहा है। जब तक थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश ब्लाइंडनेस नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। I think every girl can relate at this point with me. Okay, for eyes we have these two brushes only. This one is a eyeshadow blending brush and this one is a eyeshadow applicator. तो ये बिल्कुल बेसिक ब्रशेस हैं। लाइक आपको अगर बिल्कुल बेसिक आई मेकअप करना है तो इसे ब्लेंडिंग कर लो, एंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा इन्हें फ्लफी ब्लेंडिंग देना चाहिए था। इससे तो बस आप अपनी क्रीज लाइन में प्रोडक्ट को पैक ही कर पाओगे बिकॉज इट्स वेरी लेस फ्लफी, एंड ये इससे आप आई शेडो पैक कर सकते हो। बहुत बेसिक है, बेसिक के लिए ठीक है, बट अगर आपको प्रो लेवल का मेकअप करना है देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन सेपरेट आई ब्रशेस एज वेल। तो आज हम एक प्यारा सा मेकअप करते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ हेलो आई। सो हियर आई विल बी यूजिंग माय पैट मैकग्राथ लैब्स आई शेडो पैलेट, एंड दिस वन इज इन द वेरिएंट सनसेट रोमांस। इससे मैं ये डार्क पिंक शेड ले लूँगी on an eyeshadow blending brush, and I'll just off the excess and मैं ना अपने outer and inner corner में इस कलर को पैक करूँगी with the help of the blending brush। आज हम एक प्यारा सा हेलो आई मेकअप लुक करेंगे बिकॉज आई फील लाइक डूइंग इट। बहुत टाइम से करा भी नहीं है, मन कर रहा था। हेलो आई मेकअप लुक ना काफ़ी सिंपल भी होता है। सिंपल एज इन कि आपको कोई भी डार्कर शेड लेना है एंड उसे अपने आउटर एंड इनर कॉर्नर्स में पैक कर देना है, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट योर क्रीज एज वेल। मैं 2-3 बार ये वाला कलर लूँगी सो एज टू पैक इन द इंटेंसिटी। सेम ही मैं अपनी दूसरी आई में भी कर लूँगी। बस सिंपल ही करेंगे आज का आई मेकअप, ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। एंड अब ये वाला जो मेटालिक पिंक शेड है ना, इसको मैं एप्लीकेटर ब्रश से सेंटर में पैक कर लूँगी। नहीं लग रहा है ब्रश से अच्छे से, ये हैंड से ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है। बस ऐसे सेंटर में इसे पैक कर लूँगी। यू कैन कॉल इट एज अ हीरो आई मेकअप लुक और अ स्पॉटलाइट आई मेकअप लुक। स्पॉटलाइट इसलिए ताकि बिल्कुल जब लाइट पड़े तो सेंटर से ना लाइट रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ स्पॉटलाइट आई मेकअप लुक और अ हीरो आई मेकअप लुक। एंड सेम इस पे ना मैं ये वाला शेड भी पैक कर दूंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शिमर शेड, एंड एप्लीकेटर ब्रश से मैं सेंटर में ये वाला कलर भी पैक कर दूंगी। थोड़ा सा मैं हाथ से करूँगी बिकॉज हाथ से सबसे अच्छी इंटेंसिटी आती है। थोड़ा ज़्यादा ही पैक कर दिया। यू कैन सी यहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा गिर गया है। नो वरीज, आई एम गोना क्लीन इट। बस एक टिश्यू लूँगी, एंड जो हमारी ब्रश है ना जिसमें पाउडर भी लगा रहे हैं उससे बस मैं ऐसे ऐसे डस्ट अभी कर दूँगी। एंड जितनी बारी डस्ट कर रही हूँ उतनी बारी मैं टिश्यू में रब भी कर रही हूँ। ओके, एक बारी ये वाली एजेस को हम और क्लीन कर लेंगे क्योंकि हमने जैसे शेड लगाया था ना, एंड उसके बाद जब सेंटर वाला शेड लगाएंगे तो थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे ताकि कुछ भी हार्शनेस ना रहे। ओके गाइस, नाउ आई विल यूज दिस वेरी ब्यूटीफुल मॉविश पिंकिश शेड, एंड इससे मैं अपनी पीस को डिफ्यूज़ करूँगी। इसमें एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है तो मैंने अपना खुद का ही ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, मतलब किसी दूसरी कंपनी का, टू डिफ्यूज़ आउट द क्रीज लाइन। इसमें आई ब्रशेस में कंजूसी कर दी है। फेस ब्रशेस तो अप्रोप्रिएट है, फेस ब्रशेस से आपका पूरा फेस मेकअप हो जाएगा, बट आई ब्रशेस में डेफिनेटली कंजूसी करी गई है। ओके, इट्स टाइम टू डू दी लोअर लैशेस। तो ये जो आई शेडो पैकर ब्रश है ना, इससे मैंने ये डार्क शेड ही लिया है, एंड उससे मैं अपने आउटर कॉर्नर में, जैसे हमने सेम जो अपर अपनी आईलेट में करा है वही सेम हम लोअर आईलेट में करेंगे। आउटर में लगाऊंगी, इनर में लगाऊंगी, एंड दूसरी आई में भी सेम कर लेंगे। आउटर में लगाऊंगी, इनर में लगाऊंगी। बीच वाली आप सेंटर वाली जगह देखो मैंने अभी क्लीन ही रखी है, एंड सेंटर में मैं अपनी फिंगर से ही लगा लूँगी। पहले ये मैं मेटालिक शेड लगाऊंगी एंड देन ये शिमर शेड लगाऊंगी। ओके, इट लुक्स एब्सोल्युटली प्रिटी, बहुत प्यारा लग रहा है। आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नाउ टू ब्रिंग दी लुक टुगेदर, मैं ये वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश है ना उससे ये मॉविश शेड पिक कर लूँगी एंड पूरी ओवरऑल लोअर लैशेस की भी ब्लेंडिंग कर लूँगी। इससे मैं
आउटर से लेके इनर पार्ट कनेक्ट कर रही हूँ, इंक्लूडिंग माई सेंटर पार्ट इज वेल। हमारा सेंटर पार्ट का शिमर्स हट गए थे तो उसे एक बार रीडू कर लेंगे। ऐसा होता है गाइस, आपको मेकअप में टू एंड फ्रो करना पड़ता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। ये जो फॉल आउट हुआ है उसे क्लीन कर लेंगे। Here I am applying MAC का compact powder in the shade NC20 to clean out all the fallouts on my face. देखो कितना क्लीन एंड क्लियर लुक लगने लगा। लेट्स हाईलाइट द इनर कॉर्नर्स एज वेल एज द ब्राउ बोन। तो ये सेम जो ब्लेंडिंग ब्रश है ना, उससे मैं ब्राउ बोन के नीचे भी लगा दूंगी, लाइक सो। इससे आपकी ब्राउज अपलिफ्टेड लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। लाइक आपका चेहरा ना इंस्टेंटली लिफ्टेड लगता है। तो दीज आर ऑल द इल्यूजन विच वी एड in our makeup to make your face look much more uplifted and your eyes look much more bigger with highlighting. Okay, on my lash line, I'm thinking to add a nude color kajal. For that, I'll be using Inglot ka gel liner in the number 68, and it's a very beautiful skin color liner. देख सकते हो, दिखाती हूँ। It's a beautiful skin color liner as you can see. And ये वाला जो eyebrow brush है ना, इससे ही मैं ये liner लगाऊंगी। मैंने कभी ऐसा करा नहीं है, बट दे हैवंट गिवन अ लाइनर ब्रश, तो आई एम नॉट लेफ्ट विद एन ऑप्शन, दैट्स वाई इससे ही लगाएंगे लाइनर। एंड प्रिसाइसली लेके बस अपनी लोअर लैश लाइन में पैक कर देंगे। ओके, माय लाइनर हैज़ ड्राइड अप, सो आई हैव टू add Inglot का Duralean as well. I'll just add 2 drops and yes, I'll be good to go now. देखो सिर्फ न्यूड काजल लगाने से आईज कितनी ओपन अप लगती हैं। लेट मी अप्लाई द न्यूड काजल ऑन माय अदर आई एज वेल। एंड इस ब्रश से ना काफ़ी एफर्टलेसली लग गया काजल, लाइक मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ योर eyebrow brush to apply the kajal on your lower lash line if you are using a pot or gel liners like I'm using. I'm thinking to add black liner as well, like smoky black liner. तो मैं उसके लिए भी Inglot का gel liner यूज़ करूँगी in the number 77 and ये black color का है। सेम ही मैं eyebrow brush से लूँगी एंड जो एक्सेस है वो अपनी बैक ऑफ द हैंड में ऐसे निकाल दूँगी एंड देन I'll apply it very close to my lash line, क्योंकि इसे हम एनीवे स्मच करेंगे। ये वाला ब्रश इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है टू अप्लाई योर लाइनर्स और टू अप्लाई योर पॉट काजल्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये आईब्रो ब्रश, काफ़ी प्रिसाइज भी लग जा रहा है इससे। आई एम हैविंग चेंज ऑफ प्लान्स। इससे मैं स्मोक अप काजल नहीं लगा के मैं एक लाइनर, लाइक एक विंग लाइनर लगा रही हूँ, बिकॉज आई फील लाइक एडिंग अ विंग लाइनर टू माई मेकअप लुक। बहुत छोटा सा एक बेबी विंग ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। देखो कितना प्रिटी लग रहा है, कितना प्रिसाइजली लग गया। ओके गाइस, मैंने बस यहाँ पे अपने विंग लाइनर के नीचे ना थोड़ा सा हाइलाइटर शेड भी ऐड कर दिया है। इससे आपका लाइनर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल तिकोना लगता है, बढ़िया लगता है। नाउ आई एम क्विकली ऐड ऑन माय lashes as well as I'm gonna finish my mascara and I'll be right back. Okay guys, I've only applied the mascara. I've skipped on my lashes because I didn't feel like adding lashes. मुझे ये wing liner बहुत सुंदर लग रहा है and I don't want to take away its beauty by applying the lashes. So I've skipped on my lashes. Let me quickly set my face. Okay, I'll be setting my face with Urban Decay All Nighter Setting Spray. It's a beautiful, beautiful setting spray. It smells legit like alcohol, but it sets your makeup, it takes away all the powderiness from your face and it sets away your makeup for a really, really long time. If you are looking for good setting spray, which is expensive, then you can consider investing in Urban Decay All Nighter. It's a very good setting spray. Okay, let me quickly highlight my face. एंड हाईलाइटिंग के लिए भी कोई भी ब्रश नहीं दे रखा है इस पूरे ब्रश सेट में। एंड जो उसका ब्लेंडिंग ब्रश है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लेंडिंग ब्रश भी बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है एंड ये ओवर फ्लफी नहीं है, तो इससे भी हाईलाइटर अच्छे से नहीं लगेगा। एंड जो पाउडर ब्रश है वो बहुत बड़ा है फॉर अप्लाइंग दी हाईलाइटर, तो हाईलाइटर को आपको अपने ही ब्रश के साथ लगाना पड़ेगा। दिस इज़ अ कॉन ऑफ दिस ब्रश सेट, इसमें आपको हाईलाइटर ब्रश नहीं मिलता है, तो आपको अपना ही कोई भी ब्रश लेना पड़ेगा टू अप्लाई दी हाईलाइटर। हेयर आई एम यूजिंग माई फ्लफी आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश। आप देखो जो इन्होंने ब्लेंडिंग ब्रश दिया है एंड दी ब्लेंडिंग ब्रश विच आई हैव, इसमें कितना डिफरेंस है। इससे बेसिक आई मेकअप्स आपके हो जाएंगे, बट अगर आपको एडवांस लेवल के आई मेकअप्स करने हैं देन यू हैव टू invest in a separate eye makeup brushes as well. Okay, here I'm using Makeup Revolution का highlighter and this one is in the shade Pink Seduction. It's a very beautiful highlighter. आप देखो कितना ज़्यादा subtle finish है इसकी, कितना ज़्यादा subtle है ये, बहुत प्यारा highlighter है ये, बहुत ही ज़्यादा। If you want subtle highlighting effect on your face without over chunkiness of glitter particles, then you can consider getting this one. It performs just like any other high-end highlighter. देखो कितना प्यारा इसने फिनिश दिया मेरे फेस पे। I just love it. मेकअप रेवोल्यूशन के ना कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो इतने अच्छे हैं,
that I just can't rave enough about them. Okay, it's time for a lip liner. For that, I'll be using Nykaa Lipstone Ply Lip Liner, and this one is in the shade Spice Girl. It's a very beautiful pink color lip liner. Guys, हर बार brown lip liner लगाने की जरूरत नहीं होती है. Sometimes you can even apply pink liner if you are using softer shades of lipstick on your lips. Like अगर आप over nude shade नहीं use कर रहे हो, then आप different lip liners भी लगा सकते हो. Okay, for lipstick, I'll be applying Huda Beauty lipstick in the shade Sweet Talker. It's a very beautiful nude pink color. Okay guys, this brings us to the end of this makeup look. Let me quickly remove these claw clips and I'll be right back. Okay guys, this is my final look and it turned out so pretty. And coming to the makeup brushes, I've already reviewed in depth about each and every brushes while using them. So I hope this video is self-explanatory. But if you still want my final conclusion about this brush set, then I will say go ahead with this brush set क्योंकि अच्छा brush set है. इसमें जो 7 brushes आते हैं तो face makeup के लिए तो just appropriate है. Yes, eye makeup आप बहुत बिल्कुल basic वाला ही से कर सकते हो. कोई भी अच्छा dramatic या थोड़ा और like basic से +1 भी eye makeup करना होगा आपको, then you have to get separate eye brushes for yourself. एंड इसमें हाइलाइटर ब्रश मिसिंग है विच इज अ बमर. एंड ये ब्रशेस ना पैकेज तो बहुत अच्छी तरीके से होके आए थे, इस ट्रे में थे एंड यू गेट अ आउटर कवर एज वेल जो मैंने फर्स्ट टाइम पे दिखाया था. However, brush nets are missing from this brush set, which is a huge bummer. सारे ही कंपनीज को जो मेकअप ब्रशेस सेल करते हैं, they should give brush nets as well so as to protect the bristles of the makeup brushes after washing them. नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे expand हो जाते हैं. Other than that, it's a good brush set. Eyebrow brush भी बहुत अच्छा है, face brushes भी बहुत अच्छे हैं. Especially I'm impressed with this powder brush. ये बहुत ही अच्छा है. You can blend all the cream products with this powder brush. And ये वाला it says blusher brush, but ये भी बहुत अच्छा है to apply precisely your under eye powder or to contour your face or to place the blusher. उसके लिए ये वाला brush भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. Eyebrow brush भी बहुत अच्छा है. These three are my personal favorite: powder brush, blusher brush as well as their eyebrow brush. ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे. And ये वाला फाउंडेशन ब्रश भी अच्छा है विच इज देयर एक्चुअल फाउंडेशन ब्रश विच इज अ ड्यूप ऑफ रेयर ब्यूटी फाउंडेशन ब्रश. बट यू विल टेक सम टाइम टू गेट होल्ड ऑफ दिस फाउंडेशन ब्रश बिकॉज ऑफ इट्स शेप. ये सॉफ्ट है, हाउएवर powder brush is much more softer on your face to blend the cream products as compared to this actual foundation brush. and इसमें एक ही ब्रश मुझे काफ़ी पोकी लगा which is their concealer brush. इसको जैसे आप अपने कंसीलर एंड ऑल ब्लेंड करोगे सो इट्स क्वाइट पोकी. इसके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट फील नहीं होते हैं फेस में. एंड आई मेकअप ब्रशेस तो बहुत ज़्यादा एवरेज हैं एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. दे शुड गिव गुड क्वालिटी आई ब्रशेस. लाइक अगर वो दो ही दे रहे थे एटलीस्ट दे शुड हैव गिवन मीडियम साइज ब्लेंडिंग ब्रश. एंड पैकर ब्रश भी ना इससे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. लाइक ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखो इसके ब्रिसल्स काफ़ी बड़े हैं एंड ये इतने अच्छे से ना आई शेडो को पैक भी नहीं करता है. आपको एक प्रिसाइज एप्लीकेशन नहीं मिल पाता है. तो दिस इज़ अ बमर फॉर आई ब्रशेस. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लाइक बहुत एवरेज है. पर अदर देन दैट दिस इज अ गुड ब्रश सेट. इट रिटेल्स समवेयर नियर टू 1900 rupees. आई थिंक इट रिटेल्स फॉर rupees 1895. आई विल मेंशन द एग्जैक्ट प्राइसेस हियर. एंड उस हिसाब से ये ब्रश सेट मुझे अच्छा लगा क्योंकि पैक का है. पैक बहुत अच्छी ब्रांड है फॉर मेकअप ब्रशेस. उनके मेकअप भी बहुत अच्छे हैं, उनका मेकअप ब्रश सेट भी बहुत अच्छा है एंड काफ़ी टाइम तक चलता भी है. तो प्राइस भी ठीक है एंड आपको उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाता है. तो उस हिसाब से आपको फेस ब्रशेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं. आईब्रो ब्रश बहुत अच्छा है. अगर आप इनको इंडिविजुअल परचेज करोगे तो भी आपका प्राइस ना एक्सीड कर जाएगा 1900 से. तो उस हिसाब से ये मुझे अच्छा लगा and I would recommend this brush set and you can go ahead with this brush set. Okay, so this brings us to the end of my detailed makeup brush set review. I hope you would like it. If you do, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all, keep smiling and keep doing makeup.